Hi guys, welcome back to my channel. So मेरा गला थोड़ा ख़राब है, so please adjust. So I started my day with having a warm water that is very good for health. Then I got ready for doing yoga, but before that I was figuring out my body in the mirror. See, my tummy fat is so big, but it's okay. We will reduce it. Now it's time for yoga. So I was doing some stretching, bending forward and bending backward. That will help to relax the muscles. Now I am pushing myself upward and stretching my legs and full body to the extent. I know it will help you to provide gracefulness in your body, and stretching helps a lot to move your body in a flexible way. Now I am doing side bending over here. Basically I am following Ramdev Babaji yoga. So I done about like 25 to 30 bending, side over bending. Isn't it so beautiful? Morning is so beautiful, and doing yoga, it adds so much grace in the body and your mind. So now I will do the cross touching legs. So in this we have to maintain a straight posture and keep our straight back, and then we have to alternatively touch the legs, toes. Okay, so here I am doing it. Now I'm sitting, and here I'm looking like a panda, but it's okay. I will change my body into a good physique. Now I'm doing it might be called a chakki asan. So we are doing it in 25 steps. Okay, so 25 in a clockwise direction and 25 in a anti-clockwise direction. So what you have to do, you have to keep in mind that you have to keep your back straight and arms straight. You don't have to bend your arms. You can see I am like pushing it the best to do it in a best way. So here it is. I hope you will also do that, and you will see the difference in your body. Try it for 1 week. Now I will be doing a toe touching. So here I have to keep my back straight and will lay down on the floor on the mat, then touch the toes, and you have to follow this. Oh, here my hair got open. Okay, so get it ready. Now it is a sitting alternative toe touching exercise. So there was some like malfunction in my dress, that's why I'm using this, but it's okay. So now I'm doing this is called a cobra pose. So bending, like laying down on your stomach and keeping your back straight and legs straight and uplifting your upper body will help you to relax your back, and it will relieve your back pain too, and it will stretch your neck muscles. That will help you to stretch your body. Now I am doing a leg stretching, like one leg in a clockwise direction, repeating it in for 25 times, then another leg for 25 times. So you have to do it for in starting you have to do it for 25 times, then you can increase to 30, 40, 50 and so on. So here I am doing
the breathing exercises. That is the best part of the yoga, breathing exercises that can cure a lot of diseases like asthma, fibroids, any stomach diseases, liver, fatty liver. And if you're having a problem of snoring, it can cure everything. So here I was doing anulom vilom and breathing exercises. Now I am meditating. That is the best part, meditation, that will help you to focus on your mind and balance your mind and help you to stay positive, calm throughout the day. So I'm very thankful to the God. So I'm done. Okay, finally I'm done with the yoga. अच्छा था, मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। सो अभी हम थोड़ा सा लेटने के बाद करेंगे, बॉडी थोड़ी कूल डाउन हो जाए, फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर खाएंगे ओट्स। मैं सोच रही थी ना कि जैसे कि आज है फ्राइडे, सैटरडे और संडे में जो 3 डेज़ हैं उसमें सिर्फ एक ही होल मील लूँगी जो कि ओट्स होगा, बाकी ग्रीन टी एंड वो वार्म वाटर लेमन डाल के एंड चिया सीड्स, बस यही होगा। तो एक दिन में हम ये चैलेंज करते हैं कि एक फुल डे में पूरा हम एक होल मील खाएंगे सिर्फ। ओके, आप भी ट्राई करना, देखना आपको भूख लगती है कि नहीं। मुझे तो भूख नहीं लगती क्योंकि जो ओट्स खाते हैं ना हम, उसमें सब कुछ मैं मतलब सब कुछ इंक्लूड करते हैं, जैसे कार्ब्स हो गए, फिर गुड फैट हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो हमें ओट्स से मिलते हैं, फ्रूट्स हो गए, सुक्रोज मिल रहा है, फिर उसके बाद फ्लैक्स सीड्स हो गए जो कि हमें ओमेगा फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, और पीनट बटर हो गया सेम। तो ये पूरा एक होल मील है। तो 3 डेज़ पूरा एक होल मील खाएंगे। आई होप मैं ये कर पाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। और ना ऐसे होता है कि मैं ना पूरा लेट के ही बोलना पड़ेगा मुझे। ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आप कुछ भी चीज़ करते हो ना, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, आप मन करता है कि बैकआउट कर जाओ, कभी कभी मन करता है कि यार करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो थोड़ा थोड़ा आप करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, आपका रूटीन बन जाएगा। फिर आपको बिना एक्सरसाइज के आप रह नहीं पाओगे। सो मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ करने की। बाकी रही बात, आप पूछ रहे थे कि कोई अगर डिजीज़ कंडीशन है, हाँ मैंने आपको जैसे कि मेरी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जैसे कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो जिनका भी ऑपरेशन हुआ है, जैसे पथरी का या कुछ भी है, या जिनको पीसीओडी है, थायराइड है, कुछ भी है, तो ये जो योगा है ना बहुत हेल्पफुल है। मतलब कि योगा बहुत हेल्पफुल है, वो आराम से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं योगा की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नॉर्मल स्ट्रेचिंग, जो भी योगा के पोस्चर्स होते हैं वो प्रॉपरली कर सकते हैं। और रही बात, और जिनका ऑपरेशन हुआ है तो वो धीरे धीरे करके क्योंकि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे आपका टाइम्स बीतता जाता है तो आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, वरना बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे घर वाले बोलेंगे मेरे घर वाले देख रहे होंगे, बोलेंगे कि ज़्यादा ज्ञान दे रही है। अच्छा, तो फिर तो ऐसे अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम योगा आप नॉर्मल योगा कर सकते हो, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। थोड़ा बिल्टअप होता जाएगा, फिर आप स्ट्रेंथ स्टार्ट कर दो। ओके, रही बात आप पूछ रहे थे वो जिनको लाइक जो 15 टीनेजर्स हैं जिनको पीसीओडी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनको वो भी योगा कर सकते हैं। और पीसीओडी के लिए तो बहुत अच्छा योगा, जिनको फिब्रॉइड्स होते हैं वो तो बहुत बेस्ट है। जो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उनके फिब्रॉइड्स पूरे मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके कम 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 होते होते वो ख़त्म हो जाते हैं। ये उसमें साइंसेस में भी बताया हुआ है। तो बहुत अच्छा योगा करना, ठीक है। तो आई होप कि आप भी कंटिन्यू रखो और मैं भी कंटिन्यू रखूँ, और जो 3 डेज चैलेंज है वो करेंगे। मैं होप करूँगी कि मैं पूरा कर पाऊँ। तो करेंगे कि एक दिन में पूरा एक होल मील लेना है जो कि ओट्स होंगे, और इंटरमीडिएट फास्टिंग तो करनी ही है। हाँ, 14 आवर्स या 18 आवर्स की इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा डिले करूँ और होल मील थोड़ा मतलब अब अराउंड लंच टाइम के लूँ ताकि ठीक रहे। फिर इवनिंग में हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या आती है, मैं ना इसी फ़ोन से, जो मेरा फ़ोन है, मुझे इसी से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और मेरे को रखना पड़ता है कहीं स्टेबल, और मेरे पास ना जो स्टैंड है वो उससे कुछ काम नहीं होता है।
तो फिर इसी से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा आज अगर एक्सरसाइज की होगी, आपको कुछ दिख दुख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी स्टार्टिंग है, हर इंसान की कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होती है। तो मेरी ये स्टार्टिंग है, और आपकी जो आप एक्सरसाइज करोगे आपकी वो स्टार्टिंग है, ठीक है। चाहे वो कोई भी स्टार्टिंग हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो, मेंटली आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, कोई टेस्ट के लिए, या कोई भी हो, ठीक है। जैसे मैंने एक्सरसाइज करनी है तो मैंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया, तो आप भी वो स्टार्ट करो और वहाँ तक पहुँचो कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से प्रॉपरली अच्छे से मतलब कि फिट कर पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि क्योंकि हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हर किसी की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने भी सोचा, फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी ना ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा वो मिल जाता है कि लोगों से कि हाँ बहुत अच्छा बना रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं, टाइम लगता है, इट्स ओके, है ना। बी पेशेंस, सो सेम विद योर बॉडी, बी पेशेंट विद योर बॉडी, ओके। सो चलते हैं, बहुत सारे प्रवचन खत्म हो गया, सो चलते हैं, अभी नहाते हैं, थोड़ा मस्ती मार लेते हैं, चलो नहाते हैं।